السلام علیکم ناظرین، نیوز 84 میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد حسام الدین متین۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ اسرائیل کے ایران پر حملے اور غزہ کی تباہی پر ہندوستان کی خاموشی تشویشناک ہے۔ کانگریس لیڈر سونیا گاندھی کی مودی حکومت کی خارجہ پالیسی پر تنقید۔ میں دعا گو ہوں کہ خدا ایران اور اسرائیل کو عقل عطا فرمائے۔ سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے ایران اسرائیل جنگ پر کیا تشویش کا اظہار۔ عالمی تناؤ کے دور میں یوگا سکون کا ایک ذریعہ ہے۔ بین الاقوامی یوم یوگا پر وزیر اعظم مودی کا خطاب۔ وشاکھاپٹنم میں یوگا ڈے تقریب چندرا بابو نائیڈو کی نجی اور سیاسی شہرت کا حربہ بن گئی۔ تقریب میں مدعو ہزاروں قبائلی طلباء کے قیام و طعام کے ناقص انتظامات کا الزام۔ فون ٹیپنگ معاملے کی سی بی آئی جانچ کی جائے، مرکزی وزیر بنڈی سنجے کا مطالبہ۔ سابق وزیر اعلیٰ کے سی آر اور کے ٹی آر کو بھی جانچ کے دائرے میں شامل کرنے کی مانگ۔ بی آر ایس رکن اسمبلی کاشک ریڈی حیدرآباد ایئرپورٹ پر گرفتاری کے بعد ورنگل منتقل۔ ایم جی ایم ہاسپٹل میں کیا گیا میڈیکل ٹیسٹ۔ صوبیداری میں بی آر ایس کارکنان کا حکومت کے خلاف احتجاج اور کشیدگی۔ حیدرآباد کے آصف نگر جھرہ میں اسکریپ کی دکان میں آتش زدگی کا واقعہ۔ 3 منزلہ عمارت سے 15 افراد بحفاظت باہر نکال لیے گئے۔ 5 فائر بریگیڈ کی گاڑیوں نے آگ پر پایا قابو۔ گچی باؤلی اسٹیڈیم میں یوگا ڈے کے موقع پر افراتفری، بے ہوش طالبہ کو پولیس نے ہاسپٹل کر دیا منتقل۔ اور ایران نے اسرائیل کو پھر بنایا میزائل سے نشانہ۔ فوجی مراکز، فضائی اڈے، کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر تھے نشانے پر۔ اور اب پیش ہیں خبریں تفصیل سے۔ کانگریس پارلیمانی پارٹی کی صدر سونیا گاندھی نے اسرائیل کی جانب سے ایران پر کیے گئے حالیہ حملے اور غزہ میں جاری انسانی بحران پر حکومت ہند کی خاموشی کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا ہے۔ سونیا گاندھی نے ایک مضمون میں لکھا کہ اسرائیل نے ایران کی خود مختاری کے خلاف جو حملہ کیا وہ نہ صرف بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے بلکہ ایک طرفہ عسکریت پسندی کی ایک خطرناک مثال بھی ہے جس کے سنگین علاقائی اور عالمی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ سونیا گاندھی کا کہنا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس نے ایران میں اسرائیلی بمباری اور ہدفی قتل کی شدید مذمت کی ہے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ایسی کارروائیاں صرف مزید بدامنی اور تصادم کو جنم دیں گی۔ سونیا گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ہدف تنقید بنایا۔ انہوں نے کہا کہ جو صدر کبھی امریکہ کی نہ ختم ہونے والی جنگوں اور فوجی اور صنعتی اتحاد کی مخالفت کرتے تھے وہ اب انہی تباہ کن پالیسیوں کے حامی بن گئے ہیں۔ نیشنل کانفرنس سربراہ اور جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ایران اسرائیل جنگ پر کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ خدا ان دونوں ملکوں کو عقل عطا فرمائے۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹرمپ کو امن کی بات کرنی چاہیے کیونکہ یہ تنازع صرف بات چیت سے ہی حل ہو سکتا ہے۔ ایران اور اسرائیل کے بیچ جنگ چل رہی ہے، آپ کو لگتا ہے وشو تیسرے یدھ کی اور جا رہا ہے؟ ایران اور اسرائیل کے بیچ میں جس طریقے سے جی سر اللہ تعالیٰ اسرائیل کو ایران کو ہوش لائے، عقل دے اور اس کو بھی عقل دے۔ وہ ٹرمپ جو ہے وہ اس کے بجائے امن کی بات کرے، امن سے ہی وہاں پہ حل ہو سکتا ہے، امن کے بغیر حل نہیں۔ دنیا بھر میں آج 21 جون کو 11واں بین الاقوامی یوگا ڈے منایا گیا۔ اس موقع پر ہندوستان سمیت دنیا کے 191 ممالک میں مختلف پروگرام منعقد کیے گئے۔ اس سال کا خاص تھیم یوگ سنگم تھا جس کے تحت صبح 6:30 بجے سے 7:45 تک ملک بھر کے 1 لاکھ سے زائد مقامات پر مشترکہ یوگا سیشنز کا انعقاد کیا گیا۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس سال یوم یوگا کے مرکزی پروگرام میں شرکت کے لیے آندھرا پردیش کے شہر وشاکھاپٹنم میں موجود تھے جہاں انہوں نے تقریب کی قیادت کی۔
आरजेडी लीडर मनोज झा ने पहलगाम वाकया, ऑपरेशन सिंदूर और अमेरिकी सदर के बयान पर इजहार ख्याल किया है। उनका कहना था कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हिंदो पाक कशीदगी के खात्मे पर 17 बार अपना बयान दिया है। उनका कहना था कि इस तरह के मामलात पर वजारत खारजा की ब्यूरोक्रेसी मुकाबला करने की अहल नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में पार्लिमानी इजलास तलब करने की मांग की है। देखिए, मैं समझता हूं कि रक्षा मंत्री जी ने एक संदर्भ में ये बातें कही। हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर था वो सिविलियन टारगेट्स पे नहीं था, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट तक पे नहीं था। एक प्रोवोकेशन हमारे लोगों की जिस प्रकार से हत्या हुई और वो सामूहिक पीड़ा में, मैं बार बार दोहरा रहा हूं, देश की सामूहिक पीड़ा में तब्दील हो गई। लेकिन बहुत सारे सवाल हैं। मैं तो अब गिनना छोड़ दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने 17वां बयान दिया, 17वां अगर मैं जोड़ लूं, उसका प्रतिकार एमईए की ब्यूरोक्रेसी से अब नहीं होगा। संसद का सत्र बुलाइए, माननीय आलमी योगा डे के मौके पर आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मुनक्किद तकरीब से वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने अपने खिताब में योगा की आलमी मकबूलियत पर रोशनी डाली और इसकी इंसानियत के लिए अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने याद दिलाया कि जब 2014 में हिंदुस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में यौम योगा के लिए करारदाद पेश की थी तो महज चंद दिनों में 175 ममालिक ने इसकी हिमायत की, जो उनके मुताबिक दुनिया के लिए गैर मामूली इत्तेफ़ाक़ राय की अलामत थी। उनका कहना था कि महज एक तजवीज़ नहीं थी बल्कि इंसानियत के मफाद में एक आलमी अज़्म का इजहार था। इस तकरीब में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और नायब वज़ीर आला पवन कल्याण भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर की वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने ईरान इसराइल जंग को महज एक सियासत करार दिया है। उनका कहना था कि ये मेरी समझ से बाहर है कि ईरान पर किस बुनियाद पर इसराइल ने हमला कर दिया। उन्होंने ईरान के जौहरी हथियारों से मुतालिक इस अमेरिकी इंटेलिजेंस इंचार्ज के बयान का हवाला दिया। उनका कहना था कि इस मामले में ज़रूर कुछ सियासत चल रही है, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि जंग का यह सिलसिला जल्द रुक जाएगा और बातचीत की बुनियाद पर कोई हल निकल आएगा। जो बड़े प्रोजेक्ट है गांधरबल के 2 बड़े 5 नागबल रोड, उनके बारे में उस पर भी काम चलेगा। सर ईरान इसराइल के हवाले से माहिरीन का कहना है कि बहुत ममालिक इसमें शामिल हो रहे हैं। क्या इसके लगता है कि एक बड़ी जंग छिड़ सकती है? इससे हमें कोई असर पड़ सकता है? हम तो सिर्फ उम्मीद कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं कि जंग ना हो। अभी भी बड़ी बुरी हालत है और ये होना भी नहीं चाहिए था, क्योंकि मेरी समझ में नहीं आता कि इजराइल ने किस बुनियाद पे ये हमला किया। ठीक इससे कुछ दिन पहले जो अमेरिका के इंटेलिजेंस के इंचार्ज हैं, उन्होंने वहाँ पे जब अपने सेनेट और कांग्रेस के सामने गवाही दी तो कहा ईरान को फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है न्यूक्लियर बम बनाने की। तो अगर अमेरिका को कुछ हफ्ते पहले लग रहा था कि बम बनाने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, आज इजराइल की तरफ से हमला किस खुशी में? जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई वो मतलब इसमें कोई सियासत जो है खेली जा रही है, लेकिन हम तो ये उम्मीद करेंगे कि बहुत जल्द जो है ये सिलसिला रुके और बातचीत के जरिए जो है मसले हल हों। उत्तर प्रदेश के संबल चिंदोसी इलाके में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ जिला इंतजामिया की कार्रवाइयां जारी हैं। संबल के सीईओ अनुज चौधरी का दावा है कि यहां म्यूनसिपल के आराजी पर गैर मजाज तामीरात के तहत एक मस्जिद की तामीर अमल में लाई गई थी, जिसे अब खुद मस्जिद इंतजामिया की तरफ से मुनज़्ज़म किया जा रहा है। उनका दावा है कि मस्जिद के मौलवी ने इंतजामिया को इत्तला दी है कि गैर मजाज तामीर को जल्द ही हटा दिया जाएगा। ये नगर पालिका की जगह में ये मस्जिद का निर्माण हुआ है। अभी 15 दिन पहले सभी लोगों से बात हुई थी, मौलवी जी भी हैं, तो सबसे बात हुई थी। बात होने के बाद इन्होंने खुद ही तोड़ने के लिए वो किया था, खुद तोड़ लेंगे। तो अभी ये 20-25% के करीब टूट गया है। तो अभी जेसीबी मंगाई है उसके लिए, मलबा हटाने के लिए, कि मलबा नहीं हटवाना। बाकी उसके बाद ये लोग खुद ही अभी तुड़वा लेंगे तो ठीक है, इनको समय दिया गया। नहीं तो फिर उसके बाद इनका सहयोग किया जाएगा वो इसके जेसीबी के द्वारा, यदि ये खुद नहीं तोड़ पाते। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने वज़ीर आज़म मोदी की सताइश करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म ने योगा को बैनुल-अक़वामी योग बना दिया है। उनका कहना था कि 11वें योगा डे पर विशाखापट्टनम में तारीख रकम की जा रही है। उनका कहना था कि योगा जिस्मानी और ज़हनी सेहत फराहम करता है। योगा सिर्फ एक वर्जिश नहीं बल्कि यह ज़िंदगी में नज़्म ज़ब्त और इर्तिकाज़ को परवान चढ़ाता है।
आलमी योगा डे के मौके पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने देहरादून में मुनक्कद योग तकरीब में शिरकत की, जबकि वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उत्तराखंड के उधमपुर में बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीबात में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने हिंदुस्तानी फौज और ऑपरेशन सिंदूर की सताइश की। योगा गुरु रामदेव का कहना है कि योग हमारे डीएनए में शामिल है और ये एक अवामी तहरीक बन गई है। वज़ीर आज़म का विजन 2047 तक हिंदुस्तान को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है, योग इसकी बुनियाद होगा। उन्होंने मुल्क के हर शहरी से रोजाना 20 से 15 मिनट तक योग करने की अपील की है। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने बैनुल-अक़वामी योगा डे पर मुबारकबाद पेश की। उनका कहना था कि दुनिया भर में आज योगा लोगों का रोजाना का मामूल बन गया है। योगा हिंदुस्तान की मीरास है और दुनिया ने भी इसकी साइंसी अहमियत को तस्लीम किया है। दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता का कहना है कि दरियाई यमुना को बरसों से नजरअंदाज किया जाता रहा है, लेकिन माजी की हुकूमतों ने जो काम नहीं किया हम इसको करना चाहते हैं। हमने दिल्ली में जब से इख्तिदार संभाला है दरियाई यमुना की सफाई की कोशिशें जारी हैं। उनका कहना था कि जल्द यहां पर कश्तियां भी चलेंगी। हिंदुस्तान में तैनात ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर फिलिप ग्रीन ने ट्वीट करते हुए अपना योग तजुर्बा शेयर किया। उनका कहना था कि इस सरजमीन पर जिसने दुनिया को योगा का तोहफा दिया, हमने अपनी योग एक्सरसाइज में थोड़ी सी संजीदगी लाने का फैसला किया है। इस बैन-अक़वामी योगा डे पर हमने कुछ दोस्तों के साथ योग किया। इस मौके पर कई लोग हमारे साथ थे। इस तरह ये सेशन मुनक्किद किया गया। आंध्र प्रदेश की वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने आलमी योगा डे तकरीब के लिए खर्च करदा रकम पर जगन मोहन रेड्डी की तनकीदों को मुस्तरद कर दिया है। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि आप सेब का तक़ाबुल प्याज से नहीं कर सकते, आपको कामों के तक़ाबुल का एहसास होना चाहिए। चंद्रबाबू नायडू का कहना था कि योगा एक गेम चेंजर साबित होगा। योगा तकरीब पर रकम खर्च करने में कोई हर्ज नहीं है और न ही ये अवामी रकम का ज़िया है। वाज़ेह है कि साबिक़ वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी ने बड़े पैमाने पर योगा तकरीब के इनेकाद के लिए 100 करोड़ रुपए के अखराजात को अवामी रकम का बेजा इसराफ करार दिया था। Can you compare both? Are you having any responsibility to ask me that question? No, what I am saying, you should have condemned with them. You have to compare apple to apple. You cannot compare apple to onion or something else. One should have sense of comparing. If you don't have sense, public money, we have to use it at most efficiently for a public cause. That is a personal cause, misuse of public money. This is lot of future. Yoga is a game changer. To promote that, even Government of India has spent money, we have spent some money. आंध्र प्रदेश हुकूमत ने अजीमुशान पैमाने पर योगा तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी शिरकत की, जबकि हज़ारों स्कूली तलबा को भी इस तकरीब में शिरकत के लिए मदऊ किया गया था। ताहम आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने इस योगा डे को भी अपनी शोहरत और सियासी फ़ायदे का हरबा बना लिया। आंध्र प्रदेश हुकूमत पर इल्ज़ाम है कि उसने योगा डे तकरीब में मदऊ कबायली तलबा को भी यार मददगार और भूखा छोड़ दिया था। ये तलबा रात भर यतीमों की तरह फर्श पर सोने पर मजबूर थे। विशाखापट्टनम से वायरल वीडियो ने आंध्र प्रदेश हुकूमत की तैयारियों पर सवाल या निशान खड़े कर दिए हैं। योगा डे सेहत और तंदुरुस्ती का जश्न होना चाहिए था, लेकिन नायडू हुकूमत ने इसे हाईजैक कर लिया और मुबैना तौर पर 100 करोड़ रुपए की लागत से मुनक्किद इस तकरीब को सियासी PR स्टंट में तब्दील कर दिया। योगा डे की इस तकरीब को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कराने के लिए आंध्र प्रदेश हुकूमत ने हज़ारों कबायली तलबा को रियासत के दूरदराज इलाकों से बसों में विशाखापट्टनम मुंतकिल किया, लेकिन नायडू हुकूमत पर इन तलबा के क़याम ताम के लिए लापरवाही का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। आंध्र प्रदेश की विशाखापट्टनम में योगा डे तकरीब के इनेकाद में आंध्र प्रदेश हुकूमत के नाक़िस इंतजाम की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई हैं। प्रोग्राम में शरीक लोग वहां तकसीम किए जा रहे खाने के पैकेट छीनते देखे गए, जबकि कुछ लोग योगा के लिए बिछाई जाने वाली चटाइयां भी छीनते नजर आए। मरकजी वजीर बंडी संजय ने फोन टैपिंग मामले की CBI जांच की मांग की है। बंडी संजय का कहना था कि पुलिस को फोन टैपिंग केस में साबिक वजीर आला KCR और उनके फर्जंद KTR को नोटिस जारी करते हुए जांच शुरू करना चाहिए था। मरकजी वजीर बंडी संजय ने रियासती हुकूमत से फोन टैपिंग केस की गैर जानिबदाराना तहकीकात के लिए केस को CBI के हवाले करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि अगर केस CBI को मुंतकिल किया जाएगा तो असल हक़ाइक़ सामने आएंगे।
बीआरएस के हुजूराबाद रुकन असम्बली पी कौशिक रेड्डी को हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया है। कौशिक रेड्डी को वरंगल की सूबेदारी पुलिस ने एक कान के मालिक को धमकी देने के इल्जाम में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कौशिक रेड्डी को मजीद पूछताछ के लिए वरंगल मुंतकिल किया है। जराये के मुताबिक कौशिक रेड्डी के खिलाफ BNS सेक्शन 308, 2 और 4 और 352 के तहत मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जिसमें हमला और इक़दाम कत्ल का इल्जाम भी शामिल है। हुजूराबाद की रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी का वरंगल के MGM अस्पताल में आज दोपहर मेडिकल टेस्ट किया गया। वरंगल पुलिस कौशिक रेड्डी को जल्दी हनमकुंडा अदालत में पेश करेगी। उन्हें कल शब हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तार करते हुए वरंगल के सूबेदारी पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया था। कौशिक रेड्डी की वरंगल मुंतकिली के बाद BRS कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद सूबेदारी पुलिस स्टेशन के रूबरू जमा हो गई, जिसके बाद पुलिस स्टेशन के रूबरू हल्की कशीदगी देखी गई। पुलिस ने मुश्तइल अफराद को हिरासत में लेते हुए इन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। BRS के कारगुजार सदर KTR बरतानिया के दौरे पर हैं। KTR ने आज इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब किया। इस मौके पर KTR ने 10 साला BRS हुकूमत की कामयाबियों और तेलंगाना में तरक्याती इक़दामात पर रोशनी डाली। Just a quick slide. This possibly will give you an idea of what I'm saying. Did you all know that the world's largest lift irrigation project, the world's largest, not India's, is actually in Telangana, and it was completed in a span of just 4 years. That was done in my state in about, from 2015 until 2019. Did you also know that the world's largest campus of Amazon, which I'm sure all of you use Amazon quite frequently, did you know that the Amazon's world's largest campus is not in Seattle or the US, but in my state, Telangana, in Hyderabad? Did you also know that the world's largest innovation campus is actually in Hyderabad? It's a place called T-Hub, and the campus itself can actually accommodate more than 2,000 startups, but more importantly, it also has multiple other facets, which I'll quickly touch upon. Did you all know that Telangana is home to 1/3 of world vaccine production? Not India. 1/3 of world vaccines are produced from my state, my city. And did you all know also that not only Amazon, but if you look at the top 5 most valued tech companies of the world, all of them without an exception have their largest campuses outside of their headquarters in Hyderabad, in Telangana. Those of you who are from Bangalore here, my apologies, but we've beaten you 2 years in a row in terms of job creation here as well. So this is a story, of how a new state, which was fragile when it got started, which was nascent, has built foundations and converted it into pillars of resilience. Let me also quickly share a couple other things with you. What changed? What happened? What was really done? In fact, I was telling Professor Maya that हैदराबाद के गच्चीबाउली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी के दौरान एक लड़की बेहोश हो गई। ये वाकया स्टेडियम के गेट नंबर 2 पर बेहंगम हुजूम के बायस पेश आया। भगदड़ का यह वाकया उस वक्त पेश आया जब प्रोग्राम में शरीक मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा नाश्ते के लिए पंडाल पहुंच रहे थे। हुजूम की बायस भगदड़ मच गई। इस धक्कमपेल और हंगामाराई में एक तालिबा गिरकर बेहोश हो गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने लड़की को रेस्क्यू किया और इलाज के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल किया। भगदड़ के बाद गच्चीबाउली स्टेडियम के अहाते में नाश्ते की प्लेटें गिरी भी देखी गई। हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में VDCC रोड का तामीरी काम जारी है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिदायत पर मजलिसी रुकन असम्बली अहमद बलाला की नुमाइंदगी पर हल्का असम्बली मलकपेट आजमपुरा डिवीजन में नवाब शाह आलम कॉलेज आजमपुरा पुल पर तामीरी काम अमल में लाए जा रहे हैं। MLA फंड्स के तहत 48 लाख रुपए की लागत से जारी इन तामीरी कामों का आजमपुरा नुमाइंदा कॉरपोरेटर शेख मोहिउद्दीन अबरार ने GHMC कॉन्ट्रैक्टर के हमरा तामीरी कामों का जायजा लिया। इस मौके पर मुकामी अफराद और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। उन्होंने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया है।
हैदराबाद की आसिफ नगर झिर्रा में एक स्क्रैप की दुकान में आग लग गई। यह आग का वाकया सुबह तकरीबन 4:30 बजे पेश आया। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां मकाम वाक़े पर पहुंच गईं। फायर ब्रिगेड के अमले ने बताया कि आग पर काबू पा लिया गया है। 3 मंजिला इमारत में मौजूद 15 अफराद को बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया है। हादसे की वजूहात का पता नहीं चल सका है। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मकाम वाक़े पर पहुंच गई। किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, ताहम माली नुकसान दर्ज किया गया है। ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी के पेश नज़र हिंदुस्तानी हुकूमत ने ईरान में फंसे शहरियों की वापसी के लिए ऑपरेशन सिंधु शुरू किया है। इस मुहिम के तहत जुमे की रात एक खुसूसी परवाज 290 हिंदुस्तानियों को लेकर दिल्ली के इंदिरा गांधी बैन अल-अक़वामी हवाई अड्डे पर उतरी। वतन वापसी पर मुसाफिरों की आंखें नम थीं और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे फिजा में गूंज उठे। इन वापस आने वालों में ज़्यादातर तलबा ज़ायरीन शामिल थे। तकरीबन 190 अफराद जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, जबकि दीगर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक और मगरबी बंगाल से हैं। एक तालिब इल्म ने बताया कि सफ़र इंतहाई परेशान कुन रहा, लेकिन हिंदुस्तानी सफारत खाने और हुकूमत की मदद से वो महफूज तरीके से घर वापस पहुंचने में कामयाब हुए। वालिदैन अपने बच्चों को देखकर बेहद जज्बाती हो गए। इसराइल और ईरान के दरमियान शदीद जंग छिड़ चुकी है। इसराइल ईरान के जौहरी ठिकानों को तबाह करने के अपने खौफनाक मंसूबे पर अमल पैरा है। इन सब के दरमियान यूएन की जौहरी निगरान एजेंसी के सरबराह ने संगीन तौर पर इंतबाह दिया है। बैन अल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी के डायरेक्टर का कहना है कि अगर बुशहर जौहरी तवानाई प्लांट को निशाना बनाया गया तो मशरिक़ वस्ता में जौहरी आफत आ सकती है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की एक हंगामी मीटिंग में कहा कि हालांकि अभी तक रेडिएशन लीकेज का पता नहीं चला है, लेकिन बुशहर पर हमले के नताइज तबाहकुन हो सकते हैं। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइल हमला कर दिया, जिसमें फौजी मराकज़, फ़ज़ाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक दारुल हुकूमत तल अवीव में ज़ोरदार धमाके सुने गए। ईरान से रात फायर किए गए मिसाइल वस्ती इसराइल के इलाके डैनगिश में भी गिरे। इसराइली मीडिया का कहना है कि मिसाइल के टुकड़े लगने से डैनगिश में रिहायशी इमारत में आग लग गई। इसराइली फ़ज़ाइया की जानिब से वस्ती ईरान में मिसाइलों के ज़ख़ीरे और लॉन्चिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की ख़ातिमुल अंबिया हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने बताया कि इसराइली शहरों पर मिसाइलों से ताज़ा हमले किए गए, जिसमें फ़ौजी मराकज़, 2 फ़ज़ाई अड्डे, दिफ़ाई सनतें, कमांड एंड कंट्रोल मराकज़ को भी निशाना बनाया गया। तर्जुमान का कहना था कि ईरान के हैरत अंगेज़ हमले इसराइल को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। अमेरिका शरीक हुआ तो खित्ते में इसके फ़ौजी अड्डों को भी ख़तरात का सामना होगा। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नज़र। इसराइल के ईरान पर हमले और गजा की तबाही पर हिंदुस्तान की खामोशी तशवीशनाक है। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी की मोदी हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद। मैं दुआ गो हूं कि खुदा ईरान और इसराइल को अक्ल अता फरमाए। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने ईरान इसराइल जंग पर किया तशवीश का इजहार। आलमी तनाव के दौर में योगा सुकून का एक जरिया है। बैन अल-अक़वामी यौम योगा पर वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। विशाखापट्टनम में योगा डे तकरीब चंद्रबाबू नायडू की निजी और सियासी शोहरत का हरबा बन गई। तकरीब में मदऊ हजारों कबायली तलबा के क़याम ताम के नाक़िस इंतजामात का इल्जाम। फोन टैपिंग मामले की सीबीआई जांच की जाए, मरकजी वजीर बंडी संजय का मुतालबा। साबिक वजीर आला केसीआर और केटीआर को भी जांच के दायरे में शामिल करने की मांग। बीआरएस रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी हैदराबाद एयरपोर्ट पर गिरफ्तारी के बाद वरंगल मुंतकिल। एमजीएम हॉस्पिटल में किया गया मेडिकल टेस्ट। सूबेदारी में बीआरएस कारकुनान का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज और कशीदगी। हैदराबाद के आसिफ नगर झिर्रा में स्क्रैप की दुकान में आतिशज़दगी का वाकया। 3 मंजिला इमारत से 15 अफराद को बहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। 5 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू।
गच्चीबौली स्टेडियम में योगा डे के मौके पर अफरा तफरी, बेहोश तालिबा को पुलिस ने हॉस्पिटल किया मुंतकिल। और ईरान ने इसराइल को फिर बनाया मिसाइल से निशाना, फौजी मराकज, फजाई अड्डे, कमांड एंड कंट्रोल सेंटर थे निशाने पर। और नाज़रीन से के साथ न्यूज़ 84 का सिलसिला यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ इजाज़त। देखते रहें 4TV न्यूज़। खुदा हाफिज़।